a feedback form will be sent to you by the end of the session to record your attendance. And everyone is requested to keep their microphones muted. In case you have any question or if you want to say anything, you can raise your hand or leave your message down in the chat box. And the session will be recorded and will be posted on our YouTube channels soon. Okay, so we are honored to have with us Dr. Iqbal Haider, the Associate Professor in Department of Medicine at Khyber Teaching Hospital and Associate Dean of Research at Khyber Medical College. Dr. Haider brings a wealth of expertise and knowledge to this critical topic. Today, Dr. Haider will share his insights and expertise to shed light on today's topic, providing valuable guidance and best practices for maintaining research integrity. Without further ado, I think we should begin. I'll hand over the floor to Dr. Iqbal. Thank you. Thank you so much, Arinare Beta. And Assalamu alaikum and good morning everyone from Peshawar. Today's topic, scientific misconduct in research. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. It's just like this picture. If you conduct the things with honesty, dedication, and full efforts, all the things will be in the correct shape and in the same order. So the message is just by this one slide. So let's begin with the name of Almighty Allah. I'm Dr. Iqbal Haider, and I'm going to present scientific misconduct in research. This is our, I think, so 7th webinar on research topic, and it's in, of course, our preparation for the upcoming 3rd International Conference of Khyber Medical College on Research, which is going to be held on October 2nd and 3rd at KMC Peshawar, inshallah. July, August 6th, I'm eagerly waiting for our heroes, although they are very few in number, but they are going to represent our country. And let's all the best of luck for Arshad Nadeem and Jahanara, Nabi, and other wonderful youngsters. Although they are 7 in number, but they are representing 2.4 million to 25 million Pakistanis. So all the best of luck for my young generation. Can anyone tell me who's these personalities? Arin beta, kuch idea hai? Sir, I don't recognize him. Okay, this is American athlete, basically a cyclist, having 7 times a record winning streak of Tour de France cycling race, which is considered to be the one of the hardest athletic event in the world. So he was having this record of 7 times, but it's a small point regarding his career. He is also the survivor of malignant testicular carcinoma, to which he recovered. Up to this point, the history looks interesting, emotional, and inspiring, but the things are not straight like this. Now, coming to another personality, any idea who this person is? He's Italian thoracic surgeon, used to be renowned in the world with pictures and presentations across the world. So in so many conferences, his name is Paolo Miresi. And he conducted the first tracheal transplant in this young girl
almost 2 decades ago, and it brings him to such a limelight that he was considered to be the prominent surgeon of his era. And even he used to say that President Obama and so many presidents have met him and he did consultation for them. So another inspiring story, but the things are not like this. So अब देखते हैं कि ये स्टोरी में ट्विस्ट क्या आ रहे हैं. So let's dig out the story of Lance Armstrong. Yes, I'm a little more gifted than anybody else. It's this desire. Lance, right? You won all those races in America, but you don't win here. Dr. Ferrari? I want to be like one of your guys. I want to be on whatever program they're on. Just tell me what to do, I'll do it. This is science, no longer confined to Earth. Now we have learned to fly. I have my interview with Armstrong today. I just love to ride my bike. Not lacking in confidence. You recovered from cancer. Your job is to protect Lance. Okay, guys, the bar's open. When you say I can't go any further, say it yourself. I'm flying. I'm flying. Lance Armstrong, handsome young inspirer of millions, cannot possibly be a cheat. He's clearly doping and nobody else can see it. Lance. Whoever visit Ferrari? I get a yes or no on that. Extraordinary allegation must be met with extraordinary proof. I've never tested positive for performance-enhancing drugs. I am the most tested athlete on the face of the planet. I have never tested positive for performance-enhancing drugs. I used to believe in this sport, and Armstrong is killing it. I like this. I like somebody trying fast. If I know your boy was cheating, if he gets caught, I'll be back. How many times do I have to say it? I've never tested positive for performance-enhancing drugs. Sold the bikes to pay for drugs. You were all on the program. I didn't sign up for this. I hope you realize what we're up against. See David Walsh. I have the money and the power to destroy you. Can't censor this. It's too important. I want to confess. I'm Lance Armstrong, and I will not be brought down. So hopefully majority have got the idea what went wrong with the Lance Armstrong. He recovered from malignant testicular carcinoma, rejoined the cycling events, but this time with the wrong physician and with the wrong intent. He was using erythropoietin, plasmapheresis, androgenic steroids patches, and a bundle of drugs which can't be detected by the dope testing of that era. But ultimately in 2012, he was stripped of from all his 6 Tour de France gold medals, and he's permanently debarred from his first love, which was cycling. Of course, the students will have in mind हमें cycling or sports से क्या लेना. But this was the story. And now let's what went wrong with the renowned transplant surgeon. Was engaged to a monster. Paolo was an absolute fraudster. That's why we have to stop him. Paolo Macchiarini treated people as human lab rats. She was coughing up pieces of her own flesh. The first liver transplant, the first kidney transplant, the first heart transplant. Did they go all well? No. I think that this is the future. The next patients, everything will be better. Question is, was he torturing people to death? It's the biggest con in medical history. This guy might be an imposter, but he might also be a genius. Maybe he is on the way to save mankind. Was this guy a superhero, a super surgeon, and the love of my life? Or was he a dangerous con man and a killer?
So this super surgeon ultimately ended his career by fraudulent literature, fraudulent claims, and undergoing research studies which even didn't get IRAB approval from institute. He is currently under prison for 3 years for all these events. So this is our today's topic. Coming to the conflict of interest, I solely declare that I'm a faculty from Khyber Medical College, Peshawar, and I am presenting this lecture on behalf of Khyber Medical College, Peshawar. So this is our topic, scientific misconduct and its sequences. लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें बेसिक रूल्स को समझना पड़ेगा कि ये कंडक्ट क्या है एथिक्स का। जब हम साइंटिफिक मिसकंडक्ट की बात कर रहे होते तो एक्चुअली हम पहले कंडक्ट को सीख लेते हैं कि कंडक्ट में क्या चीज़ है जो हमें कंडक्ट करनी है, तभी हम मिसकंडक्ट की तरफ आएंगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप कहें कि मैंने नॉर्मल को सीखे बगैर अब नॉर्मल को सीखना है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फिनोमेना को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। आई होप majority of the people have now joined, and we can use this small free webinar evaluation. It will be it is available on the menti.com. So Arif, can you help the audience? Beta, you are not audible. Hello? Hello. Hello, sir. I think so. If there's a problem, we can switch it at the end so that we can minimize the glitches in our presentation. Is it okay with you? Am I audible now, sir? Yeah. अगर I've हम shared the link in the chat box directly to your presentation as well. And in case that doesn't work, I've shared the link to the website and the code to Dr. Iqbal's presentation. So everybody can open the presentation using the links. काइंडली चेक करें चैट बॉक्स को कि लोगों को कोई इश्यूज तो नहीं हो रही। Anybody has an issue, you could leave a message in the chat box. The first link will go directly to Dr. Iqbal's presentation. Sir, I don't think anybody has an issue. You can begin. Okay, no problem. Those who are interested, they can use this link anytime, but within 2 days, because after 2 days, the link is automatically expired. So we will focus on our main presentation. This is the report of Retraction Watch, which is an international code of conduct for researchers. And the report has been published last month, and it has some terrible facts regarding our country. More than 10,000 research articles retracted from international journals, and these journals are mostly impact factors. And you know who stood in the top 3? Saudi Arabia with 30.6% papers retracted in these 10,000, and Pakistan 28.1% papers retracted. So we are again in the top 3, not only in polio, but even in the scientific misconduct list. So this is another bad thing, which is I think so a blacklist phenomena as far as research is concerned. इसी वजह से जब हम रिसर्चर्स किसी अच्छे जर्नल में भी आर्टिकल भिजवा रहे होते हैं तो ये डेटा उनके माइंड में होता है और हमारे आर्टिकल्स एक्सटेंसिव स्क्रूटिनी के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये रेज होता है कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्यों मौजूद है, क्या वजह है कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट इतना ज्यादा है कि 10,000 रिसर्च पेपर्स को रिट्रैक्ट करना पड़ा।
अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, ऑनेस्टी सेव्स यू इवन इफ यू फेयर फ्रॉम इट। ये ऑनेस्टी ही है जो कि रिसर्च इंटीग्रिटी का बेसिक कंपोनेंट है, और ये हमें इन सारी मिसकंडक्ट के फिनोमेना से बचा सकता है। सो दिस प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद honesty. It will continue with honesty, and the last word will be definitely the honesty. So, इस लेक्चर के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिसमें हम एथिकल राइटिंग, इश्यूज विद राइटिंग, और जो कंडक्ट है, नॉर्मल कंडक्ट क्या होता है, मिसकंडक्ट के क्या फीचर्स होते हैं, मिसकंडक्ट के सब टाइप्स क्या है, और उसके अल्टीमेटली कंसिक्वेंसेस रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द फिनोमेना। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए प्रॉपर रिसर्च इज रिसर्च इंटीग्रिटी। हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी अपनी इंटीग्रिटी की बात कर रहे होते कि किसी के कैरेक्टर की इंटीग्रिटी उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो ये रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है? अगर मैं इसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ, इट इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, RCR फिनोमेना जिसको कहा जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च इज बेसिकली रिसर्च इंटीग्रिटी। So we can say to conduct a research with professional responsibility, either by professional organization, the institution for which we work, and whenever it is relevant by the government and the public sector. So all these are the basic components of research integrity. अल्फाज को अगर दूसरी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसी को कुछ इस तरह बता दिया है कि द क्वालिटी ऑफ पोजेसिंग एंड steadfastly adherent to high moral principles and professional standards. अब ये moral principles और standards किन्होंने डिफाइन किए होते? ये आपके इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, आपकी रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है, या इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स भी हो सकती है। तो एनी वन ऑफ दीज सेट these bars and we have to follow these bars in true spirit. अब questionable research practice क्या होता है? Actions which violate the traditional values of research and which detriments the whole research process, ये questionable research practices है, और इसी को हम रिसर्च मिसकंडक्ट कहते हैं। जिस तरह मेडिसिन में FFPs का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते, इधर भी मैं FFP को यूज कर रहा हूं, बट दिस टाइम इट स्टैंड्स फॉर फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म एक कंपोनेंट है रिसर्च मिसकंडक्ट का। इसके और भी बहुत सब टाइप्स है जो हम अब एक्सप्लोर करेंगे। सो अब ये पब्लिकेशन एथिक्स, अगर हम इस हिस्ट्री को चला जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कुछ अजीब किस्म के रिसर्चेस हुए। फिजिशियन साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडीज को एज ए गिनी पिग यूज कर लिया, और वो सारे केसेस ऑन द रिकॉर्ड आने लगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही एक ट्रायल फिजिशियंस का होने लगा, जिन फिजिशियंस ने इस प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उनकी विल के बगैर यूज किया, और इस ट्रायल को हम नुरम्बर्ग ट्रायल कहते हैं। और इसके नतीजे में नुरम्बर्ग कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप हुआ, जिसके मेन कंपोनेंट्स ये थे कि जो भी पार्टिसिपेंट रिसर्च में हिस्सा लेगा उसका वॉलेंट्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंडेटरी होगा, रिसर्च को साइंटिफिकली वैलिड स्टाइल में किया जाएगा, उसके कुछ फ्रूटफुल एम्स होने चाहिए, और अल्टीमेट बेनिफिट पार्टिसिपेंट्स को और ह्यूमन बीइंग को जाना चाहिए, नॉट टू डेट पार्टिकुलर पर्सन जो कि इस स्टडी या रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है। सो दीज वर द इनिशियल्स टेक अवे मैसेजेस फ्रॉम द नुरम्बर्ग कोड, और इसी को फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ने एज ए डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं बनाया गया। 1953 को यूएस फेडरल पॉलिसी ने ह्यूमन पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और इसी बेस पे जो आज हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या IRIB या IRB,
ये पहले मर्तबा इस कोड ऑफ कंडक्ट पे इम्प्लीमेंट हो गया। देन कम्स हेलसिंकी डिक्लेरेशन, जिसमें इन्हीं प्रिंसिपल्स को सारे बायोमेडिकल रिसर्च जो ह्यूमन पे हो या जो लिविंग थिंग्स पे हो, उसके लिए एक मैंडेटरी कंपोनेंट के तौर पे इम्पोज कर लिया गया। और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और WHO दोनों ने उसको अपना एक मैंडेटरी कंपोनेंट एक्सेप्ट कर लिया। 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूके ने भी इसको एज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, और इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर कोई भी रिसर्च इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ना कंडक्ट होगा, इस चीज को भी अप्रूव कर लिया गया। 1978 में बेलमेंट रिपोर्ट आ गई, जिसके अगर 3 बेसिक पॉइंट्स हो: रेस्पेक्ट फॉर द पर्सन्स एज ए रिसर्च पार्टिसिपेंट, there should be justice, and there should be beneficence to all the participants of those studies. एथिक्स इंटीग्रिटी पे ही गुड रिसर्च का मेन कंपोनेंट डिक्लेयर किया गया। और जब हम एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात कर रहे होते तो ये बेसिकली वो प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू हम रिस्पेक्ट देते हैं नॉलेज को, ट्रुथ को और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस को एज ए रिसर्चर्स। तो यही 3 या 4 जो पिलर्स होते हैं, यही हमारी रिसर्च इंटीग्रिटी के मेन कंपोनेंट्स हैं। Beta, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay, any question? अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन हो, he or she can raise hand और वो उसी टाइम पे क्वेश्चन कर सकता है। सो WHO ने फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कोई अपना मेन कंपोनेंट डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि ये लास्ट रिपोर्ट थी। हेलसिंकी और बेलमैन रिपोर्ट तीनों ही हमारे बेसिक कंपोनेंट से आजकल के रिसर्च में। और कोई भी क्लिनिकल ट्रायल जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा, जब उसको एक प्रॉपर ट्रायल रजिस्ट्री नंबर प्रोस्पेक्टिवली नहीं मिला होगा, उस ट्रायल को पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये इन सारी कंपोनेंट्स और इन डिक्लेरेशन का एक मेन कंपोनेंट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। सो अब मिसकंडक्ट इन रिसर्च ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हम क्यों इसको ऑब्जर्व करें? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम इसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इट्स कंसिडर्ड टू बी ए क्राइम विद सीरियस कंसिक्वेंसेस। और ये सीरियस कंसिक्वेंसेस रिसर्चर के लिए डिपार्टमेंट से लेके परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी हो सकते हैं। सो इसको इतनी इंपॉर्टेंस या क्रेडिट दे दिया गया है कि आपको इसको आप अगर कहे कि हम इससे आगाह नहीं थे, हमें बताया नहीं गया था, then even in that scenario can't be declared as innocent. So negligence इस केस में ना हर उसमें अगर आपकी इनोसेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये अगर नेग्लिजेंस हो रही हो तो तब भी ये एक्सेप्टेबल कंडक्ट के तौर पे नहीं माना जाता। सो देखते हैं कि हम जब रिसर्च कर रहे हो तो हमारे लिए एथिकल वेज एंड मीन्स क्या है। यू ऑलवेज राइट ओरिजिनल रिसर्च वर्क, देयर शुड बी नो प्लेजरिज्म, देयर शुड बी नो कॉपी एडिट, नो कॉपिंग, copy, cut and paste policy. There should be no falsification or fabrication of data. There should be no duplicate submission for publication. Authorship appropriate होनी चाहिए ICMGE के रूल्स के मुताबिक। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, अगर है भी तो उसको आपने एक्नॉलेज और साइड करना है। और जिन लोगों ने आपके साथ अगर वो अदर्स के क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो जो लोग भी आपके साथ कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को अप्रोप्रिएटली एक्नॉलेज करना चाहिए। ये बेसिक पिलर्स है एथिकल राइटिंग के। तो अब मिसकंडक्ट कहाँ हो रही है? जब एथिक्स को सही नहीं फॉलो किया जाता तो ये मिसकंडक्ट है। एंड इट्स ए डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, नेग्लिजेंस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सोसाइटी।
already I told you that it may have serious implications. Retraction of article हो सकता है, author को डिबार किया जा सकता है, head of the institute या regulatory body को report कर दिया जाता है, and जिस purpose के लिए हमारे majority of researchers articles रखते हैं, उसी promotion के लिए एक major barrier consider हो सकता है. So एकेडमिक इंटीग्रिटी को आपने हर हाल में प्रिजर्व रखना है. जिस तरह की राइटिंग और रिसर्च हो उसमें आपने ये सारी ऑनेस्ट कंपोनेंट्स रखना है. आपने नॉलेज को डिसेमिनेट करना है, आपने ट्रुथ को प्रिजर्व करना है, और यू हैव टू बिहेव स्कॉलरली विद ऑनेस्टी. ये बेसिक प्रिंसिपल्स है किसी भी एकेडमिक रिसर्च के. जो आप किसी भी डिसिप्लिन में कर रहे हो तो आपने इन ही रूल्स को फॉलो करना है. एक और जो हमारी एक कमेटी है जो कि एथिक्स में बहुत काम कर रही है एज ए रिसर्चर्स, उसको हम कोप कहते हैं. इट्स ए कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स. ये 1997 में बनी यूके में, और आजकल इसके 9000 एडिटर्स मेंबर्स है, और इसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट लास्ट वन जो 2010 में पब्लिश हुआ था, और सब प्रॉब्लम्स जो पब्लिकेशन के रिलेटेड आ रहे होते उन सबको ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिसेमिनेट कर रहा होता है. एंड इट्स ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड. सो principles of conducting good research is honesty. Honesty in respect of one's own research and others. Integrity should fulfill legal and ethical requirements. Cooperation is regarding open exchange of ideas and scrutiny within the norms of ethics. ये ना हो कि आप किसी के आइडियाज आपके साथ एक्सचेंज कर रहे हो और उसी आइडियाज को आप पायरेट करके अगले दिन आप खुद पेपर लिख रहे, तो ये भी प्लेजरिज्म है. अकाउंटेबिलिटी टू एम्प्लॉयज, फंडर्स एंड पब्लिक, एंड प्रोफेशनलिज्म. All of us should have sufficient skills and training to do our job and meet the professional standards. Safety of all the involved research. So इन सारे पिलर्स को हमने effectively एड्रेस करना होता है. अब ये अनएथिकल पाथवे हम क्यों अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च में? To be specific, most of us don't genuinely like writing. उन्हें लिखने का कोई शौक नहीं होता. ये किस लिए लिखते हैं? टू गेन ए डिग्री, टू गेट ए प्रमोशन, और अपनी सीवी को स्ट्रेंथन कर लेके. ऑफ कोर्स रीडिंग एक कम्बरसन जॉब है, इसके साथ आपको हेडेक और बैकिक जरूर होगी. और ये सारी चीजें जो होती है ये एक नॉर्मल पर्सन को एक एरेटिक एटीट्यूड की तरफ ले जा रही होती है. एंड द अल्टीमेट रिजल्ट इज ए शॉर्टकट, और वो एथिकली अनएथिक प्रैक्टिस की तरफ जा रहा होता है. सो हम क्यों इस पाथवे की तरफ चले जाते हैं? हम पे प्रेशर होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, प्रमोशनल पर्सपेक्टिव के जल्दी पब्लिश करे कुछ. हमें या एक्सपीरियंस नहीं होता या हम रूल से इग्नोरेंट होते हैं, तो हम मिसकंडक्ट की तरफ चले जाते हैं. हम टाइम और रिसोर्सेस को शायद इस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करने चाहते, जिसकी वजह से ना हम गुड आर्टिकल लिख पा रहे होते और ना एथिकल वे को फॉलो कर. अनफॉर्चुनेटली सुपरवाइजर और मेंटर्स भी डिसऑनेस्ट एटीट्यूड शो कर देते हैं, और रिसर्चर के पास यही एक ऑप्शन बच जाता है कि वो या किसी गोस्ट ऑथर को हायर कर लेता है और इसी तरह वो अपनी डिसर्टेशन और रिसर्च वर्क पब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है. इस प्रेजेंटेशन में कुछ कमर्शियल ब्रेक्स भी आ रहे होंगे, तो ये मेरा पहला कमर्शियल ब्रेक है. दिस इज माय अल्मा मैटर, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954. शायद पाकिस्तान के टॉप 3 ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक मेडिकल कॉलेज हमारा भी है. एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर our upcoming conference जो कि KMC में होगी. So this is Khyber Medical College. Now back from the commercial break,
कॉमन प्रॉब्लम्स हमें क्या इनकाउंटर्ड हो रहे होते, ये वो प्रॉब्लम्स है जो हमारे लिए पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कर रहे होते हैं। सो साइंटिफिक फ्रॉड, आप या डेटा को फैब्रिकेट कर देते हैं, डेटा को कुक कर लेते हैं, या फॉल्स डेटा को एंटर कर लेते हैं, कुछ चीजों को आप इंटेंशनली छुपा लेते हैं, अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स मेंशन नहीं कर रहे होते, ये भी मिसकंडक्ट है। या आप के पास टाइम कम होता है तो आप 2-3 जर्नल्स को अपने आर्टिकल्स भिजवा देते, या एक ही आर्टिकल को आप केक की तरह स्लाइसिंग करके मुख्तलिफ जगह भिजवा देते हैं, तो ये सलामी स्लाइसिंग कहलाती है। प्लेजरिज्म ये सारों में किसी न किसी शेप में मौजूद होती है, या आप इमेज में कुछ ऐसी अल्ट्रेशन कर लेते हैं जो कि रियल डिस्टॉर्ट से आपको डिस्टॉर्ट कर रही होती है। आपने आईरेब अप्रूवल नहीं लिया हुआ अपनी आर्टिकल का, ये भी पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है। आपने ट्रायल को रजिस्टर प्रोस्पेक्टिवली नहीं किया हुआ, ये भी पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है। आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया हुआ, पार्टिकुलरली वल्नरेबल पॉपुलेशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया गया, ऑथरशिप्स को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया, all these terms come under the domain of publication misconducts. So जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है, अगर आप देख ले तो उसकी जो लेमैन में अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करे तो प्लेजरिज्म इट्स ए काइंड ऑफ पायरेसी और स्टीलिंग। फैब्रिकेशन बस डेस्कटॉप पे ही बैठ के पूरे एक आर्टिकल कुक कर ले, ये फैब्रिकेशन है। फल्सिफिकेशन, आपके पास डेटा और रिजल्ट्स किसी स्टडी के मौजूद है लेकिन अब आप उसको टेम्पर कर रहे हैं। डुप्लीकेशन तो नाम से ही पता है। ऑथरशिप्स के बहुत से प्रॉब्लम्स है, किसी ने कुछ नहीं किया होता, लास्ट मिनट्स में आप उसको ऑथर ऐड कर देते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम एफर्ट्स आपका लोगो शायद बन रहा होता है, और आईरेब अप्रूवल इज ए मैंडेटरी कंपोनेंट, इसके बगैर भी आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी अभी तक हमने यूज किया, अगर इसको मैं कलेक्टिवली डिफाइन करूं देन इट इज फ्रॉड इन साइंस। फ्रॉड बहुत बड़ा लफ्ज है और ये सारी चीजें उसी के डोमेन में आ रही हैं। अब ये प्लेजरिज्म का वो लफ्ज कहाँ से डिफाइन हुआ है? इट्स बेसिकली अ लैटिन वर्ड, और उसका अगर आप डिक्शनरी में मतलब देख ले तो ये किडनैपर से, तो आप किसी के आइडिया को चुरा रहे हैं, आप किसी के वर्क को चुरा रहे हैं, यू आर ऑल्सो बिकमिंग ए किडनैपर। कमिंग टू द डिक्शनरी टर्म्स, कोलिंस ने इस तरह डिफाइन किया कि जब भी आप कोई ऐसा एक्ट कर ले कि जब आप किसी के आइडिया या वर्क को यूज कर ले विदाउट मेंशनिंग और एक्नॉलेजिंग हिज नेम, तो ये प्लेजरिज्म है। और अगर आप इसको मेंशन ना करें तो ये भी प्लेजरिज्म है, एक्नॉलेज ना करें ये भी प्लेजरिज्म है, चाहे ये कोई एक आइडिया ही क्यों ना हो जो कि एक स्टूडेंट एक कैंटीन में अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस कर रहा हो, और इसको अगर बाकी क्लास फेलोज किसी शेप में यूज कर ले तो ये भी प्लेजरिज्म ही की एक शेप है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म? कोई आइडिया, एनी? कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे कि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है इनके क्या पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं? वर्ड फॉर वर्ड सर किसी का आइडिया जो है प्रेजेंट करे एज आवर ओन विदाउट साइटिंग दैट पर्सन, ये वर्ड टू वर्ड है। एनी वन रिगार्डिंग ये मोजाइक प्लेजरिज्म क्या होती है? यू कैन यूज चैट बॉक्स। सर मारिया बीबी कह रही है कि कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट जो है ना ये वर्ड फॉर वर्ड में आ रहे हैं। मोजाइक
अगर आप देखें कभी कभार टाइल्स का एक पैटर्न यूज हो रहा था कि ये मोजाइक पैटर्न है। आप अपने आइडियाज भी अपने वर्ड्स भी यूज कर देते हैं और किसी को और के वर्ड्स भी आप यूज कर लेते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग। तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे होते हैं और एक मोजाइक स्टाइल बन रहा होता है विदाउट एक्नॉलेजिंग मीन्स ये भी प्लेजरिज्म है। एनीवन पैराफ्रेज और ये दूसरा टर्म बड़ा यूज होता है समरी। इसको पैराफ्रेज कर ले, इसको समराइज कर ले, ये बहुत ज्यादा ये लफ्ज यूज हो रहा होता है। तो एनी आइडिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? Sir, using somebody else's words, but like just changing the words, like using somebody else's content and changing the words. Okay, good. Anything else? हाँ, आसान कह रहे हैं कि same ideas but different words, reshuffling, paraphrasing. बिल्कुल, हाँ सही बात कर रहे हैं कि पैराफ्रेज में आइडिया किसी और का होता है लेकिन आप उसको एक नए अल्फाज की शक्ल दे देते हैं और उसको आइडिया को आप अपने स्टाइल से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि पैराफ्रेज पर प्लेजरिज्म है कि नहीं है। इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं। आइडियाज तो मैंने कहा किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी कैंटीन में आप बैठे हुए आइडियाज को डिस्कस करें और आप किसी का आइडिया चुरा लें, तो ये इसी तरह है। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या चीज है? आप अपने काम को खुद ही कॉपी कर रहे हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट। आपका कोई पब्लिकेशन फैली हुई है, आप उसी को यूज कर रहे हैं लेकिन आपने उसको ना साइट किया ना एक्नॉलेज किया विद इंटेंट कि आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरी प्रेजेंटेशन है और मेरी रिसर्च वर्क है तो मैं इसको प्रिटेंड कर लूं। तो मैं मुझसे नहीं, आप अपने वाले को भी अकाउंटेबल है क्योंकि वो भी अब पब्लिश्ड हो गया, वो भी अब किसी जर्नल की प्रॉपर्टी है। सलामी स्लाइसिंग, इसको चले नेक्स्ट स्लाइड्स में ही देख लेते हैं। सो अरीन बेटा, आप जरा वर्ड फॉरवर्ड को जरा ये पढ़ ले ताकि सबको इसकी समझ आ जाए। Word for word, copy and paste, and no referencing. An entire paragraph is lifted intact and used in the author's article. A graph from another article is inserted in the author's manuscript as his own, or a great part of the introduction or discussion is copied from another article. बिल्कुल, ये आप किसी और की सब चीजों को वर्ड टू वर्ड ले रहे, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, साइड भी नहीं कर रहे हैं। और ये ज्यादातर इस काइंड की प्लेजरिज्म जो होती है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हो रही होती है। आप अगर देख ले तो बहुत से आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन आपको टिट टू टेट कॉपी नजर आ रहे हैं। यही प्रॉब्लम वर्ड फॉरवर्ड प्लेजरिज्म की है। कमिंग टू द मोज़ेक प्लेजरिज्म, आप एक और सोर्स से आइडिया और ओपिनियन ले लेते, उसमें अपने कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस ऐड कर देते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप ओरिजिनल ऑथर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे और ये दोनों आइडियाज मोस्टली मिक्स हो जाते हैं और कंक्लूजन बड़ा कंफ्यूजिंग सा बन रहा होता है। तो ये जो टाइल्स आपको नजर आ रहे इसी तरह के एक मैसेज भी जा रहा होता है जो कि क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन होता। सो इट्स ए काइंड ऑफ मोज़ेक प्लेजरिज्म। पैराफ्रेज, any volunteer wants to read? Do you want me to read it out? Yeah, read loud. Paraphrase. The introduction of an article provides a brief and concise review of the pertinent literature. This includes other similar studies. The information has to be summarized. This involves paraphrasing and summarizing of others' work. If not referenced, it amounts to plagiarism. Guideline.
Whether we are paraphrasing or summarizing, we must always identify the source of our information. Paraphrasing is acceptable in ethical writing provided कि अगर आप उसको acknowledge करें ओरिजिनल ऑथर को और उनको साइड कर ले then it is acceptable. So ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम अब एक और लफ्ज आता है कि पैराफ्रेज और क्या नाम है समराइज में क्या डिफरेंट आ रहा है. पैराफ्रेज बेसिकली व्हेन यू राइट समथिंग आर स्पोकन इन डिफरेंट वर्ड्स और उसको आप एक शॉर्टर एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में एक मीनिंगफुल मैन्युस्क्रिप्ट में ले जाए. मतलब है आपके पास एक बहुत बड़ा आर्टिकल है और आप उसको समरी उसकी उसके पैराफ्रेजिंग कर ले जो उसके मेन कंटेंट्स हैं और मैसेज को आप कन्वे कर ले एक या दो पैराग्राफ में पैराफ्रेज करके, तो ये पैराफ्रेजिंग है. लेकिन मैसेज प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए. जबकि समरी is defined as taking a lot of information and creating a condensed version that covers the main point. जो टेक अवे मैसेज है उसको अगर वो ले जा रहा हो तो ये बेसिकली एक समरी है. आप एक 10 पेज आर्टिकल की समरी शायद 4 लाइनों में लिख सकते, 6 लाइनों में लिख सकते, तो ये एक समरी है. तो पैराफ्रेज और समरी में ये बेसिक डिफरेंस आ रहा होता है. आइडियाज इन स्पीच भी प्लेजरिज्म के उसमें आ रहा है और ये कॉमन प्रॉब्लम जब हमें आर्टिकल्स एज ए रिव्यूअर आते हैं तो रिव्यू का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ रिव्यूअर्स अनएथिकल अप्रोच के साथ उसी आइडिया पे एक पेपर लिख के पब्लिश कर देते, तो जो ओरिजिनल रिसर्चर होता है उसका काम लेट पब्लिश होता है और ये जो प्लेजराइज्ड वर्जन होता है इस बंदे ने अपना काम निकला. लेकिन इट्स आल्सो ए मेजर प्लेजरिज्म क्योंकि इसमें 2-3 चीजें, एक तो प्लेजरिज्म आ गई, दूसरे आपने रिव्यूअर डिसऑनेस्टी शो कर दी, तो इसके भी सीरियस कंसिक्वेंसेस आ रहे होते हैं. कमिंग टू द सेल्फ प्लेजरिज्म, अपनी काम को बगैर किसी रेफरेंस के पब्लिश करना, उसको साइट नहीं करना, ये सेल्फ प्लेजरिज्म है. सलामी स्लाइसिंग, ये एक और प्लेजरिज्म का वेरिएंट है जो कि बहुत कॉमन यूज है. आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपका इनिशियल डेटा आ गया, अभी आप कंक्लूजन की तरफ नहीं गए और आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आपने जो ये थोड़ा से जो डेटा आ गया इसी को एक आर्टिकल की शेप दे दी और पब्लिश कर दिया और कुछ अरसे बाद अगर और डेटा और कंक्लूजन आ गई तो उसको ऐसे दूसरे पेपर में पब्लिश कर दिया. सो दोनों आर्टिकल्स प्लेजरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे थे क्योंकि आपके पहले में कंक्लूसिव एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, आपने उसकी को यूज कर लिया और आप ये दूसरे पेपर को बिल्कुल पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने बताना भी होगा कि ये जो पहले वाली जो स्टडी मैंने पब्लिश कर दी है ये इनिशियली पायलट स्टडी थी, मेरे डेटा अंडर प्रोसेस है, अभी हम कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंचे. जो दूसरा आर्टिकल आपका पब्लिश हो रहा होगा उसमें भी आपने कहा कि ये कंटिन्यूएशन अपडेट रिसर्च वर्क है, तो आपने इन सब वर्क को एक्नॉलेज करके पब्लिश करना होता है. मेजॉरिटी ऑफ द गुड जर्नल्स दे डोंट एक्सेप्ट सलामी स्लाइसिंग बिकॉज ये एक अनड्यू बर्डन आ रहा होता है एडिटर्स पे, पीयर रिव्यूअर्स पे और इवन रीडर्स पे, क्योंकि एक ही स्टडी को वो डिफरेंट लेंस से देख पा रहे होते हैं और अल्टीमेटली अगर आप देते तो जो लास्ट एंड पॉइंट जिसमें आ रहे हैं तो वही एक्चुअली ओरिजिनल स्टडी पर कंसिडर हो रही होती है. साइबर प्लेजरिज्म जी, डॉक्टर हिजबुल्लाह जान, यू हैव रेज्ड अ हैंड. बाद में मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब इसको कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन करना है, मैं बाद में कर लेता हूँ, आप इसको कंटिन्यू कर लें. अच्छा चलिए ठीक है, इट्स ओके. सो ये साइबर प्लेजरिज्म अब बहुत कॉमन हो गई. आप इसको डिजिटल प्लेजरिज्म के साइबर कहें, इसमें बस आप एक वेब पेज खोल लें और आप कट कॉपी पेस्ट कर लें. शायद ChatGPT आज
कल की सबसे बड़ी साइबर प्लेजरिज्म आपके लिए आ रही है। इसमें भी अगर आप एक्नॉलेज ना करें सोर्स को तो ये भी साइबर प्लेजरिज्म है। ऑफ कोर्स उसमें और भी बड़े ज्यादा इश्यूज है, लेकिन मैंने तो इसको एज ए मेटाफर के तौर पे इधर यूज कर लिया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कमिंग टू द डेटा फैब्रिकेशन, ये एक और प्रॉब्लम है कि आप खुद ही डेटा और रिजल्ट्स को बना लेते और फिर उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ मिसलीडिंग फैक्ट स्टडी के साथ पब्लिश कर रहे होते हैं। पहले बहुत कॉमन थी, लेकिन अब चूंकि इतनी चीजें, इतनी रिव्यूअर प्रोसेस इतना डिलीजेंट हो गया है कि अब डेटा फैब्रिकेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे पकड़ी जा रही होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो इंटरनेशनल जर्नल्स है उसमें डेटा फैब्रिकेशन मिनिमाइज हो गई। लेकिन कोविड के पेंडेमिक में डेटा फैब्रिकेशन एक बहुत बड़ा हर्डल था, और सबसे ज्यादा रिट्रैक्शंस अगर आप देखें तो कोविड और पोस्ट कोविड एरा ही में सबसे ज्यादा रिट्रैक्शन हुआ, डेटा को रिट्रैक्ट कर रहा है। और ये उस डोमेन में आ रहे हैं जिसको हम डेटा फैब्रिकेशन या फैल्सिफिकेशन कह रहे होते हैं। सो अरीन बेटा, आई नीड योर हेल्प। Hello. बेटा, रीड इट लाउड। Okay, sir. Am I audible to everyone? Deliberate fabrication. Fabrication, deliberate publication of false research, invention of data or cases, the actual making up of research data, and the intent of publishing, sometimes referred to as dry labbing. Okay, Dr. थैंक यू बेटा। इसी में एक रियल लाइफ सिनेरियो इस में मेंशन किया गया है जो कि नेचर 2014 में पब्लिश हुआ था, उसको हम एंड में वैसे भी एक्सप्लेन करेंगे। सो डेटा फैब्रिकेशन के बड़े सीरियस कंसीक्वेंसेस है। आप डेटा को कुक कर रहे हैं, फॉल्स डेटा की प्रचार कर रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है अपने हक में, तो आप एक ऐसी दलदल में अपने आप को गिरा रहे जिससे आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। डेटा फैल्सिफिकेशन, ऑलरेडी एक रियल डेटा मौजूद है, अब आपने उससे साइड इफेक्ट्स को किसी वजह से ओमिट कर लिया, इमेज को मैनिपुलेट कर लिया, और ये अल्ट्रेशन, मैनिपुलेशन, ये सारी डेटा फैल्सिफिकेशन में आ रही होती है। ये भी खासकर रीजनरेटिव मेडिसिन और जो जीन रिसर्च है उसमें अनफॉर्चुनेटली डेटा फैल्सिफिकेशन बहुत आ रही होती है, और इन रिसर्चर्स के पेपर्स बहुत ज्यादा रिट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इवन 8-8 साल बाद इन लोगों के पेपर्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं। इमेज मैनिपुलेशन, किसी तरीके से आप इमेज को, आजकल टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपके पास क्रॉपिंग फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर है, एक कलर को कम कर देते, दूसरे कलर को ज्यादा कर देते, साइज को अल्टर कर लेते, ये सारी अल्ट्रेशन या मैनिपुलेशन प्लेजरिज्म के कंटेक्स्ट में आ रही है। उस वक्त डॉक्टर हिरोका ओबाकाटा का जिक्र हुआ, उसी के एक रिसर्च वर्क अपनी पीएचडी के लिए फिगर ए का जो ओरिजिनल कलर ये आ रहा है। अभी आप फिगर बी को देख ले, इसमें कलर को डिस्टार्ट कर दिया गया, रेड ग्रीन ब्लू को एनहांस कर दिया गया, उनके साइज वो कर दिए गए, और टू बी ऑनेस्ट जो स्मीयर, पैप स्मीयर जो नेगेटिव था फिगर ए में, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। ये एक पीएचडी स्कॉलर का रिसर्च वर्क था जिसपे उसको पीएचडी डिफेंस करना थी, और पब्लिश ऑलमोस्ट हो रहा था या हो गया था, लेकिन फिर कंसीक्वेंसेस क्या हुए वो अपकमिंग स्लाइड्स में आएंगे। आजकल इतनी इमेजिनेटिव वर्कअप हो रहा है कि आपको इस तरह की पिक्चर्स बहुत नजर आ रही होगी, और फेसबुक तो भरा पड़ा होता है जी, गाय नुमा मेंढक डिस्कवर हो गया, गाय के दड़ वाले बच्चे फलाना, ये सारे मैनिपुलेशन है, ये डिस्टॉर्शन ऑफ द रियलिटी है। और ये अगर क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब ये जो इस तरह ये फन फैक्ट्स के तौर पे, तो दूसरी बात है, लेकिन इन रियलिटी ये सारी डिस्टॉर्शंस हैं। फैल्सिफिकेशन, अब ये फैल्सिफिकेशन क्या है? पहला लफ्ज क्या है? विलफुल।
आपने अपनी रजामंदी और मर्जी से डेटा को, आउटलायर को आपने इग्नोर कर दिया। आप ये मान ही नहीं रहे कि मेरा कुछ डेटा मिसिंग है। आपकी पोस्ट हाक एनालिसिस प्रॉपर नहीं हुई। आपने साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रायल्स को कंसीडर नहीं किया। आपने अपने डेटा को मैनिपुलेट कर लिया और क्रिटिकल डेटा आपका कहीं पे मिस होगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किए और विलफुली आपकी इंटेंशन थी तो ये फैल्सिफिकेशन है, जिस तरह हिरोको ओबाकाटा ने किया था। सो डुप्लीकेट और रिडंडेंट पब्लिकेशन, एक ही डेटा को आप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टेक्स्ट के साथ माइनर सी चेंजेस ले आते हैं, ऑथर्स की कंसीक्वेंसेस को चेंज कर लेते हैं, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट में कुछ मामूली 19-20 का काम कर लेते हैं और उसको आप पब्लिश कर लेते हैं, लेकिन इट्स ए डुप्लीकेट पब्लिकेशन, इट्स ए रिडंडेंट पब्लिकेशन। आप अगर एक ही आर्टिकल को 2 जर्नल्स में भिजवाए या एक ही जर्नल के अंडर रिव्यू प्रोसेस हो और आप दूसरे को भिजवा दे तो ये भी रिडंडेंट पब्लिकेशन के प्लेजरिज्म के डेफिनेशन में आ रही है। में ऑलमोस्ट ऑल जर्नल्स डोंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट सबमिशन। ऑथर को पहले से एक वो देना पड़ता है अंडरटेकिंग कि मैंने कहीं और पे अपने आर्टिकल को ना सबमिट किया हुआ है ना पब्लिश किया हुआ है। अगर ये फिनोमेना ना किया जाए तो हर एक ऑथर के सेम आर्टिकल बहुत से जर्नल्स में पब्लिश हो रहे होंगे और एक जो हम एक टर्म यूज कर रहे होते गार्बेज इन गार्बेज आउट का फिनोमेना चल रहा होगा रिसर्च में। सो रिडंडेंट पब्लिकेशंस के भी फिर बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें सेम डेटा को डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज नहीं किया जा रहा होता, माइनर सी चेंजेस लाई जा रही होती। ये कॉपीराइट्स की वायलेशन है। डबल काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा होता है। ऑथर को स्टार्ट ऑफ दिस सबमिशन अब ये रिटन में देना होता है कि अंडरटेकिंग देनी होती है कि मैंने अपने आर्टिकल को कहीं पे पब्लिश नहीं किया। अगर कहीं पे इसके एब्स्ट्रैक्ट या समरी किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुई तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है। सो ऑनेस्टी एक बेसिक कंपोनेंट है इन सारी चीज़ों का। जो हम एथिकल प्रैक्टिस इन रिसर्च की बात कर रहे हो, इसमें एक ही चीज़ चल रही है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। सो कमिंग टू अवर सेकेंड कमर्शियल ब्रेक, this is the teaching hospital of Khyber Medical College, Khyber Teaching Hospital, Peshawar. It has a capacity of almost 1270 beds and हमारे सारे अंडर ग्रेजुएट्स की जो क्लिनिकल टीचिंग है उसका मेन हब यही है। सो ये मेरा दूसरा कमर्शियल ब्रेक था। सो conflict of interest, those who have started this presentation from the start, they noticed that I clearly declared my conflict of interest. ये conflict को declare करना बड़ा जरूरी होता है कि नियत का पता चल जाए कि ये किस नियत से ये प्रेजेंटेशन हो रही है। इसमें कोई मिलावट तो नहीं हुई, कोई चीज मिलाई तो नहीं गई। ये अगर मिलाई गई तो नो इशू, डिक्लेयर कर दे। अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन के लिए ऑनरेरियम मिल रहा है तो डिक्लेयर कर दे कि आई हैव टेकन ऑनरेरियम फॉर दिस, आई एम एम्प्लॉय ऑफ खैबर मेडिकल कॉलेज, मैं इस जर्नल का एडिटर हूं। अगर ये सारी चीजें एक्नॉलेज कर दी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वैलिड पॉइंट होता है। अब ये हमें क्या कर रहा होता है कि हमें डिक्लेयर करना होता है कि हमारे एज रिव्यूअर या पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, हमें ऑनरेरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ कोई रिलेशनशिप या एकेडमिक कंपटीशन कुछ इस तरह तो नहीं है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज हैं। सो बिल्कुल डिक्लेयर करें और एक्नॉलेज करें। ये एक सेंटेंस ऑफ COI आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रीएम्प्टिवली प्रिवेंट कर देगा। ये कुछ डिफिनीशंस है लेकिन बात वही है जो मैंने स्टार्ट में कर ली। सो हमें अपने कंपीटिंग इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडवांटेजेस, एकेडमिक कमिटमेंट्स, personal relationship, political or religious beliefs or institutional affiliation.
अब अगर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया और उसमें ऑलरेडी है कि मैं खैबर मेडिकल कॉलेज और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हूँ, तो डेफिनेटली उसमें ऑथरशिप में भी क्लियर होता है, लेकिन जो एडिटर्स के पास जब आर्टिकल चला जाता है तो उसे पता लग जाता है, वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरी इंस्टीट्यूट को आर्टिकल मेरा भिजवाए ताकि उसकी रिव्यू उधर हो, क्योंकि इधर तो सारे मेरे ही जानने वाले लोग हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स तो इधर, इंटरेस्ट मुझे इधर एडवांटेज मिल जाता है। सो कमिंग टू द अप्रोप्रिएट ऑथरशिप, जो कि हमारे एथिकल राइटिंग का एक और कंपोनेंट है। हर वो बंदा आतर है जो सब्सटेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट करे एक रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट में। ये ऑथरशिप के कंट्रीब्यूशन पे ऑर्डर आइडियली होनी चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई फर्स्ट ऑथर बनेगा कोई सेकंड बनेगा, तो ये कंसेंसस भी होती है और मेजर ट्रिब्यूट्स भी होती हैं। एक बात मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को क्लियर करना चाहता हूं कि जस्ट एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस, आइदर ए कंप्यूटर ऑपरेटर, collecting actual data, getting articles from library, doing statistical work, or doing Xeroxing, it doesn't merit authorship by ICMGE. So, authorship के अपने 4 उसूल होते हैं, जिसको डॉक्टर अख्तर शीरी ने हमारी जो इनॉग्रल वेबिनार थी ऑथरशिप डायलेमा, उसमें उन्होंने एलेबोरेटली इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। जस्ट टू हैव स्नैपशॉट, हु क्वालिफाइज एन ऑथर, अल्लामा इकबाल ने कहा था कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूस हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बंदा है मुसलमान। इधर ICMG कह रही है कि ये जो सामने आपको जो 4 रोल्स हैं, अगर इन सब को एड्रेस किया गया है तो एक बंदा ऑथर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और इधर आप देख ले कि हर एक के एंड में एंड लिखा गया और नहीं लिखा गया, तो ये कलेक्टिवली ऑथरशिप के एट्रीब्यूट्स है और ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी है, आप इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। और ये सारा फिनोमेना ICMG ने सिर्फ एक काम के लिए किया था, ताकि सारे ऑथर्स अकाउंटेबल हो हर एस्पेक्ट से। ये ना हो कि अगर मिसकंडक्ट हो जाए तो ऑथर 3 कहे कि जी मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया था, तो मैं तो इनोसेंट हूँ। नहीं, सारे अकाउंटेबल है। अरीन बेटा काइंडली ये एनोटेशंस को डिसेबल कर दें। अब आजकल गोस्ट ऑथर्स भी आपको मिल रहे हैं, खासकर जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज है, वो मेरा मतलब समझ रहे हैं कि गोस्ट ऑथर्स और पेड राइटर्स कौन होते हैं। ये एक और अनफॉर्चुनेट फिनोमेना चल रहा है कि इंडस्ट्री स्टूडेंट्स शॉर्टकट की तरफ चले जाते, या उनके पास टाइम नहीं होता, या वो कंफर्ट नहीं होते, या एग्जाम सर पे आया होता है, तो इन लोगों को किसी और को पेमेंट करके वो आर्टिकल लिख देते। इट टर्म्स इनके लिए गोस्ट ऑथरशिप यूज हो रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपने उन्हें एक टाइटल तो दे दिया, वो कट कॉपी पेस्ट सब कुछ शायद कर ले, अगर ज़हीन बंदा हो तो इससे भी ज़रा आगे चला जाए, लेकिन वो मेडिकल या साइंटिफिक टर्म्स को और एक्सपेरिमेंट को उस तरह ना वो समझ सकता है, ना उसको एक्सप्लेन कर सकता है, ना उसको एलेबोरेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो स्टूडेंट्स है वो PGs है, जो उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली होती है कि वो रिसर्च वर्क कर लें, वो उसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जगह तो किसी और ने कर लिया। तो ये कब सीखेंगे? ये स्टेप्स तो जस्ट लाइक स्विमिंग, आपको कूद के पानी में ये सारे प्रोसेस सीखने हैं। तो अगर आप कूदते ही नहीं हैं, आप इंटेंट ही नहीं शो करते, तो आगे जाके आप कैसे एक इफेक्टिव रिसर्चर्स बन सकते? और जो 7 स्टार डॉक्टर्स होते उसके तो एक कंपोनेंट सिर्फ क्लिनिशियन है, बाकी कंपोनेंट्स कहाँ पे आप सीखेंगे फिर? गिफ्ट ऑथरशिप अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक और होता है, काम कुछ नहीं किया होता और जो जूनियर होता है वो उसको अपने सीनियर को एज ए ऑथर एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये विलफुल भी हो सकता है, नॉन विलफुल भी हो सकता है, मतलब
उस सीनियर को शायद पता ही ना हो और उसका नाम डाला गया हो, उसकी साइटेशन वगैरह ज्यादा हो जाती है, फलाना हो जाता है, बट इट्स ए गिफ्ट ऑथरशिप, ये भी प्लेजरिज्म ही है. सो इट्स ए काइंड ऑफ, इट्स अनएथिकल, इट्स ए ब्राइबरी. गिफ्ट ऑथरशिप कभी कभार बहुत बड़े लेवल पे भी हो रही होती है. आपके डिपार्टमेंट का हेड आपका ऑथर बन जाता है, वाइस चांसलर्स बन जाते हैं, लेबोरेटरी के हेड्स बन जाते हैं. सो सुपरवाइजर को अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को अपने सुपरवाइजर्स एज ऑथर्स डिक्लेयर करने चाहिए. चैट बॉक्स में मैं रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ. Sir, most of the answer is no. Yes, all of them are right. बिल्कुल, अगर उसने सिर्फ आपको आइडिया दिया और एक कंपोनेंट अगर ऑथरशिप का एड्रेस हो रहा है तो फिर तो नो. लेकिन अगर उसने आपके साथ आइडिया को भी किया, आपके साथ डेटा कलेक्शन भी किए, आपके साथ उसने क्रिटिकल अप्रेजल भी किए और वो अपने आप को इस सारे प्रोसेस का अकाउंटेबल भी समझता है, तो फिर उसने चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए. अब आप उसको एज ए ऑथर अपनी एडजस्ट कर सकते हैं और ये उसका हक भी बनता है. अदरवाइज आप उसको सिर्फ एज ए कंट्रीब्यूटर एक्नॉलेज कर लें. सो इज दिस क्लियर? डॉक्टर जायदुल्ला, आई पार्टली एग्री विद यू, लेकिन हमें ICMA के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल में वो दिन गुजर गए जब आपने जो बात की है इसको मन वन एक्सेप्ट कर लिया जाता था. आजकल के एरा में आपको ये चारों एट्रीब्यूट्स फुलफिल करने होते हैं टू बी डिक्लेयर योर सेल्फ एज एन ऑथर, वेदर ए सुपरवाइजर और नॉट सुपरवाइजर. So coming to my third commercial break, this is Professor Intikhab Alam Sab. I did my house job, my training. He's my mentor and I owe my every step of success to him. May Almighty Allah give him a prosperous, healthy life. Ameen. So अब आते IRIB की तरफ. इंस्टीट्यूशनल रिव्यू एथिकल बोर्ड, कुछ लोग इसको कह रहे थे, कुछ लोग इसको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कह रहे हैं. हर एक इंस्टीट्यूट जहां पे रिसर्च एवेन्यूज हो, जहां पे रिसर्च हो सकता हो, वहां पे मैंडेटरी है कि वहां का IRIB या IRB बोर्ड हो जिसके मिनिमम 5 एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हो, जहां पे हर एक रिसर्च प्रोटोकॉल को और उनके इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो रिसर्च प्रपोजल हो उसको प्रेजेंट कर दिया जाए, उसको इवेलुएट कर ले और फिर एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू करे. ये सारे कंपोनेंट प्रोस्पेक्टिव है. स्टडी स्टार्ट होने से पहले रिसर्च प्रपोजल जब आप लिख रहे हो, ये उस वक्त के स्टेप्स है. तो every IRIB approval certificate must be taken prospectively. Unfortunately, हमारे जो जूनियर्स होते हैं वो रिसर्च वर्क कर लेते हैं और जब पब्लिकेशन का टाइम आ रहा होता है तो फिर IRIB सर्टिफिकेट के पीछे आ रहे होते हैं, विच इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस एंड नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी एथिकल टर्म्स. ये उसी तरह है जिस तरह एक बंदा घर बना रहा हो तो पहले वो अपनी जो अथॉरिटी है उससे अपने जो नक्शे उसको अप्रूव पहले करता है, घर बनाने के बाद कोई नक्शा एक्सेप्ट नहीं करता. So this point must be kept in mind. It's a mandatory component. IRIB का काम क्या है, इसको क्यों बेलमेंट रिपोर्ट और हेलसिंकी डिक्लेरेशन के बाद ही IRIB का कंसेप्ट आ गया था. और बेसिक कंपोनेंट क्या है कि वल्नरेबल ग्रुप जो है ना एज ए रिसर्च पार्टनर्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाए और ये ह्यूमन सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के लिए ये स्टेप मैंडेटरी है. अब ये वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है? ये वो लोग होते हैं जो कि अपने लिए फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकते. ये दीज आर प्रिजनर्स,
women in our society, children, mentally incapacitated people, refugees, poor, elderly. ये सारे जो है ना, ये हमारी डिफिनीशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप में आ रहे हैं। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। जी मोहम्मद जीशान, यू हैव रेज्ड हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर मेरा IRB लिहाज से एक क्वेश्चन है। जैसे मैं खैबर मेडिकल कॉलेज से हूँ, तो अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कॉलेज से IRB से मतलब एक अप्रूवल लेनी होगी, या उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर रिसर्च कर दे? बेटा आपके रिसर्च वर्क ये पता है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस रिसर्च को कर रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में कर रहे हैं? सर इंस्टीट्यूशनल। बेटा अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो आपको अपने प्राइमरी जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है उससे भी आपने IRAB लेना है, और जिस इंस्टीट्यूट में आपकी प्लेस ऑफ सेटिंग है स्टडी की उससे भी लेना है। तो आपको 2 IRAB लेने होते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। सो अब ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के अगर ये हम ना करें तो इसके लिए हमने जो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, और तीसरी एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करना, ताकि उसको, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिजिशियंस ने कुछ अजीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। आज इस ड्रग को देखते हैं कि ये प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट करता है, विदाउट कंसेंट प्रिजनर्स को दिए जा रहे थे साइड इफेक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए। सो ह्यूमंस को एज एन एक्सपेरिमेंट मॉडल के तौर पे यूज किया जा रहा था। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए IRAB सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने शायद तीसरी या फोर्थ स्लाइड में गुड रिसर्च कंडक्ट के लिए ऑनेस्टी की जरूरत है, ऑनेस्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ वंस ओन रिसर्च and others research, integrity to fulfill legal and ethical requirements, cooperation regarding open exchange of ideas and scrutiny, respect the ideas of other and don't pirate their ideas, accountability होनी चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, और सेफ्टी मेजर सब के लिए होने चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए भी, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो ये गुड रिसर्च कंडक्ट के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। Coming to my fourth commercial break, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अगर पर्सनैलिटी का नाम लिख लें चैट बॉक्स से। This is Professor Dr. Muhammad Humayun, another mentor of mine. I owe my clinical acumen to this personality. Allah Ta'ala इनको भी हमेशा खुश और सेहत के साथ रखे, आमीन। So, अब जब इतनी स्टोरीज और इतनी टर्मिनोलॉजी हमने कर ली, तो अब देखते कि ये बातें शायद सिर्फ बातें ही है कि इनके कुछ डैमेजिंग इम्पैक्ट्स भी है। So let's explore true harsh realities which are published in BJOG, British Journal of Obs and Gynae, 1996, and the Nature issue of 2014. So ये BJOG है, गायनी और ऑब्स के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा जर्नल, जिसको हम मेडिकल के टर्म्स में BMJ के सब्सिडरी का जर्नल है, और इसके एडिटर होते थे जेफरी चैम्बरलेन। This is the picture taken available in the archive of Khyber Medical College, Peshawar. He visited KMC and delivered a lecture
फ्रंट रोज पे हमारी ऑनरेबल गायनी प्रोफेसर्स बैठी हुई है और लेफ्ट साइड पे अल्लाह बख्श हमारे एक बड़े फेमस पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन और कम्युनिटी मेडिसिन के हेड भी बैठे हुए हैं। तो ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए आई थिंक सो 1994 में केएमसी आए थे। तो ये उस वक्त की पिक्चर है। 1996 में इनके एक आर्टिकल पब्लिश हुआ एंड इट वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू। उस वक्त के सारे मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट किया। he was the co-author of that article. He was also holding the presidency post of RCOG and chief editor of BJOG. मेलकम पियर्स इस आर्टिकल के मेन ऑथर थे और वो असिस्टेंट एडिटर भी थी PGOG के। और मेजर ब्रेक थ्रू क्या थी कि सारे मीडिया में आने लगा कि लंदन के डॉक्टर्स ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को री इम्प्लांट कर दिया यूट्रस में और बेबी लाइव डिलीवरी भी हो गई। बहुत बड़ी बात है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ओरिजिनल प्लेस पे लाया गया और वो डिलीवरी सक्सेसफुल अनइवेंटफुल भी हो गई। और डॉक्टर्स की ये मतलब है इसकी विश पे वो काफी अरसे से काम कर रहे थे। सो इट वाज ए कंसिडर्ड टू बी ह्यूज अचीवमेंट और सारे मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट कर दिया। लेकिन इसमें मेलकम पियर्स जो थे, जो मैंने कहा असिस्टेंट एडिटर थे, ये उनकी केस रिपोर्ट थी और उन्होंने इसमें अपने साथ को ऑथर का नाम जेफरी चेम्बरलेन का लिख दिया। इसी इशू में इनकी एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी मेलकम पियर्स का पब्लिश हुआ जिसमें जेफरी चेम्बरलेन नहीं थे, वो सिर्फ इस केस रिपोर्ट में को ऑथर थे। तो ये स्टोरी जो थी हर जगह पे इसकी और मेडिकल फेटर्निटी में इसको वाइडली एक्नॉलेज किया जाने लगा। चेम्बरलेन क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम था उस जमाने में, इनकी किताब हम लोग एज ए गायनी स्टूडेंट्स पढ़ते थे 10 टीचर्स, ये उसके मेन ऑथर थे। और ये किताब मतलब एक गायनी की एक बड़ी प्रेस्टिजियस किताब कंसिडर की जाती थी और हमारे टीचर्स हमें बहुत इनकरेज करते थे कि आपने अगर 10 टीचर से गायनी पढ़ी हुई तो तब आप गायनी के सब्जेक्ट को सही समझ रहे हैं। तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो मेलकम पियर्स ने पब्लिश किया था, मैंने कहा इसमें चेम्बरलेन एज ऑथर नहीं थे, ये सिर्फ केस रिपोर्ट में उनके साथ को ऑथर थे। सिर्फ 4 महीने बाद दोनों पेपर्स को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया गया BMJ ने और एक्सपोज की थी स्टोरी को डेली मेल ने कि ये दोनों पेपर्स फाल्सिफिकेशन है, ये फ्रॉड डेटा है और ऐसी कोई इवेंट हुआ ही नहीं। डेली मेल वैसे बड़ा मशहूर है ये स्पाई एडवेंचर्स के लिए। सो अगले दिन जो न्यूज़पेपर था डेली मेल के, उस पे फुल लेंथ पिक्चर थी चेम्बरलेन की, जो कि कह रहे थे कि मुझे तो इस स्टडी का कुछ पता ही नहीं है, ये केस रिपोर्ट तो मुझे कुछ बताया ही नहीं गया, मेरा नाम तो इस जूनियर ने खुद ही डाल दिया विदाउट मुझसे पूछे या वो, और बस ये मेरा नाम पब्लिश कर दिया है। उस जमाने में टू बी ऑनेस्ट ये कॉमन फिनोमेना था कि जूनियर सीनियर के नाम अपने साथ पेपर में डाल देते थे और आर्टिकल पब्लिश हो जाता था। सो उसकी स्टेटमेंट चेम्बरलेन साहब की यही थी। वाकया कहाँ से शुरू हुआ? सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल में एक हाउस ऑफिसर था, उसने इस पे क्वेश्चन रेज कर दिया था कि ये जो बेबी डिलीवर हुआ है ये आजकल कहाँ है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, डिलीवरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आए। और ये जब तो कुछ भी नहीं था, डेटा में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था, ना ये डिलीवरी हुई थी ना ये रजिस्ट्री में कुछ आया था। सो पेशेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के भी मेजॉरिटी पेशेंट्स डेटा में उनका था ही नहीं। और
ये स्टडी तो 1996 में प्रेजेंट हुई थी। उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली जब बाकी चीज़ों को एनालाइज कर लिया तो और 3 और पेपर्स में भी मैल्कम पियर्स ने यही वाली डंडी पहरी थी और ये सारे पेपर्स रिट्रैक्ट हो गए। ऑल पेपर्स रिट्रैक्शन हो गई नाम के। मैल्कम पियर्स को परमानेंटली जनरल मेडिकल काउंसिल ने प्रैक्टिस से डीबार कर दिया। चेम्बरलेन रिटायर्ड हो गए या उनसे रिजिग्नेशन ले ली गई तमाम पोजीशन से। एक ऐसा बंदा जो कि गायनी का एक बहुत बड़ा नाम था, उसका कैरियर टेरिबली ट्रेजिक एंडिंग के साथ क्लोज हो गया। तो एक चीज, सिर्फ एक गिफ्ट ऑथरशिप जो कि उस वक्त एक नॉर्मल फिनोमेना थी, वो एट द एंड उसका पूरा कैरियर ही ले डूबी। ये एक और इवेंट है जो स्टेम सेल रिसर्च, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च जो होती है आजकल या स्टेम सेल में हो रही है या रीजेनरेटिव मेडिसिन में हो रही है, जो आप इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल दे रहे हैं, तो इसमें आर्टिकल्स को बहुत हाइट्स भी मिल जाती है और इनके काम को भी बहुत एकम्प्लिश किया जाता है। सो 2014 एरा था जब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये क्लेम किया गया कि स्टेम सेल को रीजनरेट किया गया और ये डेटा एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल रहा और इसके आउटपुट्स बड़े अच्छे आ गए और जापानीज मीडिया ने इसको इतना कवर कर लिया कि इवन जापानीज प्रेसिडेंट जो उस वक्त थे, उन्होंने भी पर्सनली इस पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट को कॉल कर ली और उन्हें मुबारकबाद दे दी। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद कन्फेशन की स्टोरी कुछ और आ रही थी। ये उनके सुपरवाइजर थे, ये उबुकाटा के योशिका ससाई नाम था उनका। 32 इयर्स की एज में ये अपने इंस्टीट्यूट में, जिसको राइकन इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जापान का बड़ा वेल नोन इंस्टीट्यूट है, उसके प्रोफेसर्स बन गए थे और 58 इयर्स के एज तक, 52 इयर्स के एज तक ये प्रोफेसर के पोस्ट पे रहे और इनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने पहला स्टेम सेल रिसर्चर है जिन्होंने ऑप्टिक कप को ह्यूमन सेल्स में डेवलप किया था 2012 में। और इनकी एक बड़ी एम्बिशियस स्टडी हुआ करती थी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रीजनरेट करना चाहते विद इट्स ओन ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो जनवरी 2014 में इनकी स्टडी पब्लिश हुई थी, प्राइम ऑथर ये स्टूडेंट थी, पीएचडी स्कॉलर, उनका नाम सेकंड डाला गया। उसमें इतने प्रॉब्लम्स थे कि 2 जुलाई को नेचर ने ऑथर्स के रिक्वेस्ट पे इसको रिट्रैक्ट कर लिया। मतलब ऑथर्स ने खुद मान लिया कि हाँ, हमसे डेटा में मेल्सिफिकेशन हुई है। जब इंस्टीट्यूट ने इंक्वायरी कर ली तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट को डिक्लेयर किया गया ऑन बिहाफ ऑफ हारुको उबुकाटा, जिसने अपने पीएचडी के रिसर्च वर्क की पेजकर्स जो मैंने स्टार्ट में शेयर की थी उसको मैनिपुलेट करके, फल्सिफाई करके, मैग्नीफाई करके एज ए पॉजिटिव रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो स्टडी पीएचडी स्कॉलर की थी, उसने उसे 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप स्टडी को दोबारा कर ले और अपने सारे एविडेंस दोबारा प्रेजेंट कर ले। लेकिन नवंबर या दिसंबर 2012 में 2014 में इसी इंस्टीट्यूट ने उससे पीएचडी की डिग्री वापस ले ली और जो डॉक्टर का जो सफिक्स ये यूज कर रही थे उसको रिट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट का कैरियर तो इधर खत्म हो गया, प्रॉब्लम ससाई के साथ थी। सर, एक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट ने पूछे जी, in research and publication misconduct in Pakistan, is it mandatory for editors of journals to report all such cases to HAC? यस, HAC की पॉलिसी ये कि अगर आपके एज एडिटर आपके जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हो गया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, विलफुल और अनविलफुल, तो एक तो ये कि नेक्स्ट इश्यू में इसका कोरिजेंडम लिखा जाएगा जिसमें आर्टिकल का नेम, ऑथर्स नेम, उसका जो DOI नंबर है, रीजन फॉर रिट्रैक्शन,
इसकी कॉपी HEC को भी जाएगी, उसके इंस्टीट्यूशनल हेड को भी जाएगी और इसकी कॉपी ऑथर्स को भी जाएगी। वो फिर डिपेंड करता है कि मिसकंडक्ट किस लेवल का है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो जर्नल होता है अपनी एक इंक्वायरी बना लेते हैं, बोर्ड बना लेते हैं और बोर्ड पे डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम किस लेवल ऑफ ऑफेंस में कंसीडर कर लें। तो जो डिसीजन होते हैं यूजुअली कोप की गाइडलाइंस ही फ्लो चार्ट्स में ये चीज़ें मेंशन होती है, तो उस हिसाब से। लेकिन मिनिमम ये होता है कि आतर के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि इस बंदे को वार्म कर ले कि फ्यूचर में इस तरह ना करे, और 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक वो जर्नल उसको बार भी कर लेता है अपने जर्नल से। ये मैंने मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम की हद नहीं है। इसको जो है ना जो इनके जो सुपरवाइजर थे ससाई साहब, उनको क्लियर डिक्लेयर कर दिए गए इस इंक्वायरी में। मतलब उनका कोई डायरेक्ट रोल इस मैनिपुलेशन में नहीं था, लेकिन उसको ग्रेवली रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर कर लिया गया कि उसने प्रोजेक्ट को बड़ा सरसरी देखा, इन डेप्थ उसने इसका रिव्यू नहीं किया। ये उसकी सुपरवाइजर था, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको और डिलीजेंटली इस डेटा को एनालाइज करना चाहिए था, तब इसको सिग्नेचर करके और इसको पब्लिश करना चाहिए था। ससाई सीवियर डिप्रेशन में चले गए, 1 मंथ तक हॉस्पिटलाइज रहे। जब ये घर आ गए देन ही ऑप्टेड फॉर हराकीरी। हराकीरी क्या चीज है, एनी आइडिया? ये जापानीज ट्रेडिशन है। अली नासिर, यू वांट टू से समथिंग? Anyone? कोई आइडिया है कि हराकीरी, या जिसको सिपुको भी कहा जाता है, इट्स ए जापानीज। सर ये कॉज ऑफ डेथ को या फिर उसको नहीं कहते रिचुअल सुसाइड वगैरह इस तरह कुछ? ये बेटा ऑनर किलिंग होती है, ऑनर सुसाइडल। जापानीज कल्चर में ये एक मतलब है कि जब भी उन्हें कोई, अगर कोई सिपा सालार या आर्मी का बड़ा सरेंडर करने का मौका आ जाता है तो सरेंडर की निस्बत वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। इधर भी ससाई ने ऑनर किलिंग को अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, ही कमिटेड सुसाइड। So this was August 4, 2014. A brilliant scientist, an excellent researcher, जिसको रिजेनरेटिव मेडिसिन में बहुत बड़े दर्जे पे रखा जा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, जिसमें उसको क्लियर भी डिक्लेयर माना गया, बिकॉज ऑफ हर स्टूडेंट ही ऑप्टेड फॉर दिस पाथवे। कोविड के एरा में आप सबको पता है कि बड़े फैल्सिफाइड डेटाज आ रहे थे, डुप्लीकेशन हो रही थी। कोई कह रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोविड का इलाज है, फिर कोई कह रहा था एजिथ्रोमाइसिन। बहुत सी स्टडीज बड़ी पब्लिश हो रही थी, और आई थिंक सो मनदीप मेहरा, इसके तो इतनी ज्यादा स्टडीज इन पे पब्लिश हुए जिनमें 10 पेशेंट्स होते थे, सब थे उस वक्त पब्लिश हुए लैंसेट टाइप जर्नल्स में। लेकिन 1 ईयर लेटर वो सारे आर्टिकल्स रिट्रैक्ट हो गए और उनको फैल्सिफाइड या फैब्रिकेटेड स्टेज में कंसीडर कर लिया गया। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, अब इन चीजों को अगर हम मिसकंडक्ट को देख ले तो हम कहाँ पे खड़े? मैं सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करूंगा कि अगर आपने क्वालिटी इंटीग्रिटी ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर को मेंटेन रखना है, it depends on high quality research and of honesty, high quality reporting of the results, और हर जगह पर एक लफ्ज आएगा honesty, honesty, honesty. So the whole research work starts with honesty. It goes with idea of honesty, conducting the research honesty, getting it published with honest way, and it ends with honesty. So जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, अगर आप उसी एक कॉल को अपना लोगो बना ले इस रिसर्च जर्नी में, तो आप मिसकंडक्ट से बड़े इजीली बच सकते हैं। इस 1 या 1.5 घंटे में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो नॉलेज या जिसको हमने शेयर किया,
उसका एक ही मैसेज है कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को इनकलकेट कर दें एक छोटे से लेवल से, तो हम इन सारी चीज़ों से बड़ी इजीली बच सकते हैं। सो रिसर्च इज ए साइंस विच इज बेस्ड ऑन एथिक्स। बस इसी एक जुमले को याद रखे तो एथिक्स ही आपको आपकी इंटीग्रिटी को एलिवेट करेगी। सो टेक ओ मैसेज, मिसकंडक्ट को अवॉइड करें, साइंटिफिक मेथड्स में स्ट्रिक्टली अपने आप को एडहेर करें, प्रोस्पेक्टिवली हर एक स्टेप को मेंटेन रखें, रिकॉर्ड कीपिंग आपका क्लियर एंड एलेबोरेट होना चाहिए, कोलैबोरेशन मीनिंगफुल और क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ऑथरशिप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पूरी पता हो और आप उसके साथ ट्रूली एडहेर हो, आपने अंडरटेकिंग दी हुई हो। न्यू मेंबर्स जो रिसर्च एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनको मेंटरशिप फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, किसी अच्छे रिसर्चर के साथ अपने आप को मेंटोर कर ले और एक एनवायरनमेंट डेवलप कर ले जिसमें आप इंकरेज और सपोर्ट करो क्वेश्चंस को और ओपन डिस्कशन को रिगार्डिंग रिसर्च। I am acknowledging the efforts of Dr. Fatma Javed, JPMA की चीफ एडिटर मिस्टर शौकत जावेद साहब, एडिटर इन चीफ PGMA, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर शीरीन किंग यूजी के जो चीफ एडिटर हैं। मेरा जो रिसर्च की जो जर्नी है इनमें इन तीनों का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है एंड आई टोटली एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन। It will be unfair if I don't acknowledge my own contemporary and juniors. So all of them, I am thankful to all of you, starting from Dean KMC, Khyber Medical College, Dr. Rubina Gul, Dr. Jihan, Dr. Zia, Mohsin Shafi, and the wonderful dynamic young students of my SRC. So thank you so much. You played an excellent role in all this research journey. So if someone is interested regarding the further reading material, these are some excellent documents regarding scientific conduct and misconduct. Of course, they can contact me also. The forum is open for questions. If anyone has question, I will try, because we all are learners and we learn from one another. This is my email address. If someone don't have the time to ask question at this moment, they can email me too. I think so it will be a knowledgeable section for all of you. As far as I'm concerned, it was a pleasure being with all of you. So let's start question answer. I would like everyone to please fill out the feedback form. I've shared it in the chat box. It's mandatory to record your attendance for today's session. Also, sir, you have a question by Mariam Tariq. She asks, what happens to systematic reviews and meta-analysis done using those RCT, which were later retracted? Are authors of SRMA also responsible or answerable? बेटा ये क्वेश्चन किन्होंने किया था? Mariam Tariq. अच्छा मरियम, as far as I'm comprehending your question, आप कह रहे कि जो सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस रिट्रैक्ट हुए, जर्नल्स ने भी उनको रिट्रैक्ट कर लिया, तो उन जर्नल्स के एडिटर्स के साथ क्या हुआ? एम आई राइट? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बताया कि कौन से ट्रायल्स वगैरह को रिट्रैक्ट कर लिया गया था, तो कुछ सिस्टमेटिक रिव्यूज होंगे जिन्होंने उन ट्रायल्स को इंक्लूड किया होगा अपनी इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर, तो क्या ऑथर्स ऑफ दो सिस्टमेटिक रिव्यूज आर आल्सो रिस्पांसिबल? नहीं बेटा, आप देखिए, आप जब एक चीज रिट्रैक्ट होती है ना तो ऑनलाइन उस पर आप क्लियर आ रहा होता है कि ये आर्टिकल रिट्रैक्टेड है, तो आपको एक्सेस होनी आ रही होती। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांजिशन पीरियड में अगर किसी ने उसको साइट कर लिया,
तो उनके साथ क्या है, तो बेटा वो तो एक विंडो पीरियड था जिसको उस वक्त आर्टिकल की स्टेटस वो नहीं है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि अब जिन्होंने ये सिस्टमेटिक रिव्यूज पब्लिश कर दिए हैं वो जरा फिर वो कर ले कि हमारी जो एक स्टडी है अब अभी हमें पता चला या हमें इस तरह हुआ है कि वो वाले, तो एडिटर्स को एटलीस्ट आप इन्फॉर्म कर दें कि उस वक्त तो ये आर्टिकल रिट्रैक्ट नहीं था जब हम ये, लेकिन अब चूंकि हमने जब लेटेस्ट स्टेटस देख ली तो डेट मेंशन कर दी कि इस डेट को ये रिट्रैक्ट हो गया है, तो एटलीस्ट उस जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को आप इन्फॉर्म कर दें कि ये, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन पे आ जाएगी। वो फिर कोप वाले बाकी मेंबर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह एड्रेस करें। लेकिन एज फार एज अदर्स आर कंसर्न वो इतना रोल तो प्ले कर सकते हैं कि अब उन्हें पता तो चला कि वो जिसको हमने रेफरेंस बनाए वो तो वही आर्टिकल अब रिट्रैक्ट हो गया है। So is it clear? Yes, sir. Thank you so much. There's another question by Dr. Jihan. He asks, data of an article should be kept for how many years with the author? डॉक्टर जिहान, बड़ा $1 million का क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे जहन में भी आते हैं और शौकत साहब के साथ हमारी 1-2 मीटिंग भी जब हुई थी तो हमने यही क्वेश्चन किया। एज सच कोई डिफिनीशन नहीं है कि डेटा को कितने, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 से 5 साल तक आपके पास अपना डेटा होना चाहिए। इनडेफिनिट टाइम तो खैर कोई नहीं रख सकता, लेकिन मिनिमम 3 इयर्स का ये एक हर जगह पे कंसेंसस आ रही है। जब भी हम पामी के मीटिंग्स या इस तरह कर रहे होते हैं उनके नोट्स जब मैं देख रहा हूँ तो मिनिमम 3 इयर्स, अदरवाइज इनडेफिनिट, क्योंकि आजकल तो आपके पास क्लाउड की फैसिलिटी मौजूद है, आपके पास इनडेफिनिट डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, तो यू कैन टेक इट इनडेफिनिट, लेकिन मिनिमम की जो बात है वो 3 साल है। Dr. Shahir has raised his hand. जी डॉक्टर शहीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जी बेटा मुझे सर आवाज, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं, आवाज आ रही है अभी सर? जी 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 सर, मैं यहाँ पे कीमी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में यूरोलॉजी में सीनियर रजिस्ट्रार हूँ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कोई 2 पेपर लिखने की, क्योंकि आपने जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो सेकंड नंबर पे है जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल्स की। तो सर अगर यहाँ इस इन्वायरमेंट में कोई ऑनेस्टली भी काम करना चाहे तो बाकी फिर भी मतलब वो शक करेंगे और जो उनको रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसी सर कोई वो है मेथड्स हैं या आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जो डेटा कलेक्शन है उसमें वो अप्लाई करें या वो उनको हम अडॉप्ट करें कि उसको ये हमारी हॉनेस्टी शो, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली काम कर भी रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमारा वो थोड़ी चांसेस के खुद कम होते हैं। जैसे हमारे एक सीनियर हमसे मैंने पूछा यहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो, जैसे मैं PCNL पे अपनी वो आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोडेक्टोमी, तो उन्होंने कहा कि आप जो CT स्कैन करते हैं पेशेंट की उनकी पिक्चर लिया करें। जब आप ये सारा डेटा उनको सेंड करेंगे तो वो पिक्चर साथ होंगी तो ये शो करेंगे कि हाँ ये पेशेंट है, वाकई पेशेंट है, जो डेटा है वो ओरिजिनल है। तो ऐसे सर कोई मेथड्स हैं या आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम वो अडॉप्ट करें, ये जो हम वर्क कर रहे हैं इसलिए वो शो भी हो? डॉक्टर शहीर, आप आई थिंक सो फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम आई राइट? सर खैबर मेडिकल, ओके, बस एक ही मतलब एक उनकी का एक कॉलेज है ना। बेटा अब आप लोगों की जो है ना माशाल्लाह डॉक्टर अख्तर शीनी के अंडर एक ट्रायल रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। आप उधर अपने ट्रायल को पहले रजिस्टर करें और उनके पास डेटा कलेक्शन यूनिट भी है, जो कि आपके जो लास्ट टाइम मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन सारी डेटा को उधर सेव कर रहे हैं। तो जब आपकी ट्रायल रजिस्ट्री हो जाए, ये ट्रायल रजिस्ट्री बेसिकली है क्या चीज़, ये एक रजिस्ट्री होती है जिसमें आप और आपका डेटा उनके पास उधर ही ऑटोमेटिकली सेव भी हो रहा होता है इन एनी शेप्स। जिस तरह आपने अभी CT का नाम लिया
कि हम CTKUB कर लेते, तो जाहिर बात है उस CTKUB का डाटा उधर से हो रहा। तो एक तरीके से जो US ट्रायल एजेंसी है या ऑस्ट्रेलियन ट्रायल एजेंसी है या अब जो की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो अपनी ट्रायल रजिस्ट्री का जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ये सारी डेटा कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ताकि डेटा कलेक्टिवली जमा भी रहे और ट्रांसपेरेंसी भी हो और अकाउंटेबिलिटी का कैंपेन। तो ये रजिस्ट्री के यही फायदे होते हैं कि आपका डेटा डायरेक्ट आप फिर मतलब आप से ज्यादा उनकी क्योंकि वो आपको उस वक्त तक ट्रायल रजिस्ट्री के सारे बेसिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे जब तक आपने उनको सेटिस्फाई नहीं किया होगा। ये तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम सब क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम उस स्कैन का इमेज अपने साथ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और कर सकते हैं, मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं या ड्राफ्ट कर सकते हैं जिससे हमारी डेटा जो हो वो रियल हो। सच आइडियली हर इंस्टीट्यूट का जैसे अपना हम कोई पेशेंट डेटा से कलेक्शन सेल होना चाहिए जहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का डेटा कलेक्ट भी हो रहा हो, मॉनिटर और रेगुलेट भी हो रहा हो। लेकिन ये शायद अभी दीवाने का ख्वाब है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन KMU में तो इतना मुझे पता है कि उनके डेटा कलेक्शन यूनिट फंक्शनलाइज है, तो आप काइंडली जरा उनसे कांटेक्ट कर लें, होपफुली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। Sir, there's another question by Dr. Ziauddin. He asks, does systematic review and meta-analysis need IRAP approval? बेटा पहले जरा हम IRAP अप्रूवल हमें किस चीज के लिए चाहिए? वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जहाँ के आप एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले सकें, आप इन सारी चीजों को तो इन रियल सेंस मैं जब देख रहा हूँ तो उसका अपने एक फ्लो चार्ट्स होते हैं, आपने प्रिज्मा स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है, उनके अपने डिजाइन्स होते हैं ना, उसी डिजाइन्स के अंदर ही आपने अपने सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस को लिखना होता है। तो स्टेप्स अगर फॉलो हो रहे हो तो ठीक है। टू बी ऑनेस्ट चाहिए तो नहीं, लेकिन जिस तरह के मैंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली इतने बैड लिस्ट में आ गए हैं कि हमारे अच्छे काम को भी फल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन के नजरिए से देखा जाता है। तो अगर ले लिया जाए तो कोई मतलब नुकसान नहीं है, इट जस्ट एड्स ऑन क्रेडिबिलिटी। अदरवाइज मेजॉरिटी के लिए सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसमें ये स्टेप्स हो नहीं रहे होते। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम इस वक्त सेकंड नोटोरियस ग्रेड में पड़े हुए हैं, और ये भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद हम पहली पोजीशन हासिल कर लें। Sir, there's another question by Dr. Hamza Safar. He says scientific writers are usually publishing paid articles. So is there any HEC policy for that? But just repeat the question. I was reading the chat. Okay, sorry. Dr. Hamza Zafar asks that scientific writers are usually publishing paid articles. So is there any HEC policy for that? क्वेश्चन को बेटा मैं जरा, इन्होंने कहा कि साइंटिफिक राइटर्स रिसर्चर्स आर यूजुअली पेड आर्टिकल्स। Sir, I'll read his text. He said it in Urdu, sir. Scientific writers paid articles publish कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई HEC policy है? इट्स ए क्लियर कट प्लेजरिज्म। तो अगर किसी भी स्टेज पे वो पकड़े गए तो फिर डिग्री और रेपुटेशन दोनों एट स्टेक हो जाती है। सो प्लेजरिज्म इन एनी शेप इज अनएक्सेप्टेबल इन रिसर्च सोसाइटी। और HEC आप लोगों को पता भी है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ मतलब कुछ ऐसे भी हुए कि लोग वाइस चांसलर और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बन गए और 10-15 साल बाद उनके पेपर्स HEC में स्क्रूटिनी या उन पे कंप्लेंट चली गई और उनसे उनकी PhD डिग्री वापस ले ली गई। सो विच इज really a big defame to the name of that personalities. So ये तलवार शायद ताउमर पर सर पे लटकी रहती है कि कुछ भी हो सकता है। So better to avoid these things. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब,
Walaikum. Very nice presentation, sir. I really enjoyed it through and through. And Dr. Naila Hadi here. मैं सर एक कमेंट करना चाह रही थी. एक क्वेश्चन था डाटा स्टोरेज का कि हाउ लॉन्ग शुड द डाटा बी स्टोर्ड. सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज डाटा स्टोरेज जो है, जैसे आपने बोला कि 3 to 5 years, तो 5 years के बाद वो वैसे भी सर वो रिडंडेंट हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट डाटा विल नो लॉन्गर बी रेलेवेंट आफ्टर 5 years. तो इसलिए ये बहुत हमें क्लियर इन माइंड होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये भी कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड पब्लिक स्कूल के 5 साल के बाद आपकी डिग्री भी रिडंडेंट हो जाती है और आपको कुछ और साथ में करना चाहिए. बिल्कुल. तो जी, तो सर इसलिए आई थिंक डाटा हम इतना ज्यादा स्टोर करने की हमें जरूरत नहीं है. जो आपने पब्लिकेशन करनी है एज सुन एज पॉसिबल आप करें, सो इट्स आउट, और जितना आप उसको वो कर सकते हैं. तो ठीक है, बस आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस कमेंट. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Dr. Naila Hadi. I think so question इस पर्सपेक्टिव में भी था कि अगर हमें कभी कुछ डेटा इसलिए भी कभी कभार स्टोर करना पड़ता है कि आप अगर आप पे कोई वो कर ले, ब्लेम लगा दे, तो आप अपने डेटा को अपनी उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज करना चाहिए. तो एक कंपोनेंट वो भी है. बाकी आजकल के जब भी आपका डेटा आपके पास हो तो कोशिश करें कि विद इन 6 to 8 months आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा इसको पब्लिश करें. अदरवाइज साइंस इतनी स्पीड से इम्प्रूव कर रही है कि मतलब है आपको पता भी नहीं होगा जो डाटा आपने कलेक्ट किया होगा ऑब्सोलीट हो चुका होगा. इसकी एक क्लियर कट मिसाल मैं अपने एक जूनियर की दे देता हूँ. he conducted research on conventional interferon. क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आता है, तो उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया कोई 500 से 800 पेशेंट्स का, लेकिन फिर उनकी कुछ और प्रॉब्लम्स या कुछ और कमिटमेंट आ गई, बाहर चले गए. बाहर से जब वापस आ गए ना तो सिर्फ 1 साल का अरसा गुजरा था और कन्वेंशनल इंटरफेरेंस पाकिस्तान से भी ख़त्म हो गई थी. ये NOAs आ गए थे, वो सारे ओरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स आ गए थे. और अब आप अगर आप किसी को कहे कि आप कन्वेंशनल इंटरफेरॉन लगाना चाह रही है तो इवन पेशेंट भी कह देते हैं डॉक्टर से कौन सी जमाने की बातें आप कर रहे हैं. तो मतलब चीजें बड़ी डाइवर्स हो रही है. जिस तरह कोविड के एरा में तकरीबन सब ने HCQ खा लिए और एजिथ्रोमाइसिन को अपनी जिंदगी बना ली. आजकल अगर किसी को कोविड हो जाए तो कौन ये खाएगा. सो यस, यू आर राइट कि अपने डेटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर ले और रिपोर्ट कर ले. So, any question? Does anybody have any other questions to ask? I don't think we have any more questions. Well, with that, I would like to thank everyone for joining us today. Thank you for your active participation and engaging questions. Thank you, Dr. Iqbal, for such an insightful session, for such a knowledgeable session. I'm pretty sure everybody learned a lot and enjoyed the session today. I'd like to extend my special thanks to Dr. Naila Hadi from PGMI for joining us today, who is also our speaker for the next session that will be taking place on 30th July, tomorrow. And I'll also like to thank Dr. Hezbollah for joining us today. Thank you very much for your time. I've sent the link to our next webinar. Kindly everybody register yourself. Looking forward to seeing you. Also, a soft reminder or an announcement for anybody who's joining us for the first time today. The third annual International Research Conference of Khyber Medical College will be taking place on 2nd and 3rd of October. The registrations will be commenced soon. I'll share the link to our website. For any updates, kindly visit our website. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz, everyone.